Welcome to the Nova. In this lecture, we are going to discuss the time of flight of the projectile which is performing a projectile motion. So in projectile motion, what we are going to assume? We are going to assume the non-horizontal projectile motion. That is, suppose there is a ground floor and from there someone is kicking a ball or something at certain velocity, and it is going to achieve certain height and then return back and again touch the ground. So that parabolic path is the trajectory of the projectile. So we gave it initial velocity, we call it V0, and we launched with certain angle, we call it the launch angle, and this is initial velocity. So we are going to break down the initial velocity into its components. There are two main components, that is x component V0x and the y component V0y. As we know from the vectors algebra that V0x is equal to what? V0 cos theta, and V0y is equal to V0 sin theta. Now we are going to take the point P over here, that is a point at the maximum projectile, that is the maximum displacement from the surface. At maximum point, what is going to be the zero? The final velocity. Now if an object is going upward, which component is responsible for that vertical direction? The y component is responsible for the vertical direction. So here the y component was V0y and it was equal to V0 sin theta, and over there the y component is equal to what? At maximum point, the y component or the final velocity of y is equal to 0. And this is y component, and we know from the previous lecture, अगर आपने वही नहीं देखा तो पहले उस lecture को देख लें, that the acceleration is only due to the change in the y component, and it is a is equal to minus g. Since we are talking about the vertical component, now we are assuming the time it took from this point to reach at that point. We are naming as th. Th is time to reach the highest point. Time to reach the highest point. We are labeling it th, and this is from this point over this point. Let's call point A and this point B. So this is tg, time to reach the ground again. So g for ground. So for th or for time taken to the maximum height, we are going to use the equation of the motion for vertical component. Why? Because जैसे vertical जाएगा तो उसका vertical component को determine करेगा, the y component will determine the vertical direction or vertical motion of the projectile. So अब हम यहाँ पे एक equation of motion use करेंगे, that is the first equation of motion. And first equation of motion क्या होती है? Vf is equal to Vi plus At. Now we will transform this equation according to the vertical components. अब vertical components में अब final कौन सी है? Vfy, और initial कौन सी है? V0y, और प्लस A क्या है हमारी? माइनस g और t. अब Vfy वो किसके बराबर है? एट फाइनल पॉइंट Vfy इज इक्वल टू 0, एंड V0y किसके बराबर है? V0 sin थीटा के, एंड प्लस इंटू माइनस वी गेट माइनस gt. अब ये माइनस का अगर हम यहां पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का. सो वी गेट व्हाट? gt इज इक्वल टू V0 sin थीटा. अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो g यहां पे डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, तो यहां क्या करेगा? डिवाइड. वी गेट t इज इक्वल टू V0 sin थीटा ओवर g. नाउ दिस इज टाइम taken to reach the maximum point. Now we are going to find the time of flight. But what is the time of flight? अब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? We'll define time of flight is nothing but time in air. प्रोजेक्टाइल ने एयर में कितना टाइम लिया है, उस टाइम इन एयर को हम कहते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट. या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम फ्रॉम द किकिंग पॉइंट टू द लैंडिंग पॉइंट. जहां से किक किया था या थ्रो किया था या प्रोजेक्टेड किया था और जहां पे वापस लौटा है, इस दरमियान जो टाइम लिया है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम बिटवीन kicking point
लैंडिंग पॉइंट, इस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम दैट ऑब्जेक्ट्स टेक टू रिमेन इन द एयर। जितना टाइम वो एयर में रहा उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम द किकिंग पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट और फ्रॉम प्रोजेक्टेड पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट। इस पूरे टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हम इसको ऐसे मैथमेटिकल लिख सकते हैं, टोटल टाइम दैट इज टी, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, total time capital T is equal to what? Summation of these two times, TH plus TG. So total time is equal to what? TH plus TG. TH time taken to reach the height point and TG time taken to again reach the ground. Now these two times are equal to each other. Suppose मैं आपको कहूं कि एक बाल मैंने थ्रो किया है, it took 5 seconds to reach the highest point. अगर 5 सेकंड में वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा? अगेन इट विल टेक द 5 सेकंड्स टू। सो टोटल टाइम कितना हुआ? 5 ऊपर गया और 5 नीचे 10 सेकंड्स हो गया। सो जितना टाइम उसने ऊपर लिया है वी से TH इज इक्वल टू TJ। जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम वो नीचे आने में लेता है। बट व्हाई इज दैट? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G वो सेम है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और सेम, तो वो टाइम इक्वल रहता है। यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितने रेट से वो ऊपर जाकर स्पीड को कम करता है उतने ही रेट से वो नीचे आकर स्पीड को इंक्रीज करता है। सो रेट सेम है। वो रेट क्या है? G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो रेट सेम है, दैट मीन्स के जो टाइम वो ऊपर जाने मिलेगा वही सेम टाइम वो नीचे आने मिलेगा। सो TH बराबर हो रहा है TJ के एंड इज इक्वल टू T। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू व्हाट? TH प्लस TJ। सो वी गेट T प्लस T और टोटल टाइम इज इक्वल टू 2T। अब ये T किसके बराबर है? V नॉट साइन थीटा के। सो वी गेट टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 V नॉट साइन थीटा अपॉन G। दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम द किकिंग पॉइंट टू द लैंडिंग पॉइंट or the summation of time taken to reach the highest point and again returning to the ground, or time taken to remain in the air. These all three definitions of what? Time of flight. Again time है, यूनिट क्या होगा इसका? सेकंड ही होगा। Now we'll see कि टाइम डिपेंड किस पे करता है। We know कि टोटल टाइम किसके बराबर होता है? 2V नॉट साइन थीटा अपॉन G। अब ये V नॉट क्या है? लॉन्च वेलोसिटी, और ये क्या है? लॉन्च एंगल। लॉन्च वेलोसिटी एंड लॉन्च एंगल, और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम डिपेंड करता है दो चीजों पे, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है और दूसरा डिपेंड करता है किस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। अगर वेलोसिटी हमने ज्यादा देंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा, तो इट विल टेक मोर टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड। और अगर सिमिलरली एंगल ज्यादा देंगे सो ये वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, अगेन इट विल टेक मोर टाइम एंड रिटर्न टू द ग्राउंड। सो टाइम डिपेंड्स ऑन these two factors, इनिशियल वेलोसिटी और द लॉन्च वेलोसिटी एंड द एंगल। अब मैक्सिमम टाइम कब होगा? जब ये साइन थीटा 1 होगा, साइन थीटा 1। अब साइन थीटा 1 कब होता है? जब एंगल क्या हो? 90 की हो। एंगल 90 हो मतलब क्या आपको उसे वर्टिकल फेंक रहे हैं। सो वी गेट T इज इक्वल टू 2V नॉट अपॉन G। सो दैट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, जब एंगल क्या होगी? 90 डिग्रीज की होगी। दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। डिफाइन कैसे करेंगे और इक्वेशन क्या है इसकी? 2V नॉट साइन थीटा अपॉन G। और ये किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी और लॉन्च वेलोसिटी एंड द लॉन्च एंगल।